نظام مصطفیٰ سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور سیرت اور ڈیوائن ریویلیشن کا نفاذ، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ایک ڈیوائن ریویلیشن ہے، لیکن پریکٹس حضور نے کر کے دکھایا۔ آپ کی ایکسپلینیٹری اور لا میکنگ اتھارٹیز کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ نظام مصطفیٰ سے مراد صلح حدیبیہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد مواخات مدینہ ہے۔ جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد قرآن و سنت کا نظام ہے۔ اٹ شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اللہ کی آیات اور آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت، اسی کو خلفائے راشدین نے ایکسپینڈ کیا ہے۔ خلفاء کے دور میں انسٹیٹیوشن بلڈنگز ہوئی ہیں، ریفارمز ہوئی ہیں، سٹرکچر حضور نے کڑا کر کے دے دیا ہے، کانسیپٹ آپ نے قرآن و سنت کی صورت میں دے دیا ہے۔ تو خلافہ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، یعنی وہ خلافت جو حضور علیہ السلام کے پرنسپل سے آگے ٹرانسفر ہوئی۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ختم نبوت ہے، تو اس کے بعد چونکہ حضور نے فرمایا خلیفہ ہوں گے، وہ ایکسپینڈ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر عمر عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ سب سے پہلے تو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مقاصد اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دل کی عمیق گہرائیوں سے سنو ٹی وی کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے تمام عالم اسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و بعثت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کسی نے کہا تھا کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے وہ ایک نئی صبح کا آغاز ہے، اور قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ جو سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ یہ سب کچھ جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے جو آپ کی بعثت کی صورت میں عطا ہوا ہے، تو مسلمان اس پہ خوشیاں منائیں، اور یہ سب سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ اب جمع جو دو چیزیں کی جاتی ہیں، مال اور اعمال، پریکٹسز اور ویلتھ، ان سب سے بہتر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منائیں آمد کی۔ اب اس خوشی کے تقاضے کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہ وقت یاد کرو اللہ کی نعمت کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور اپنی نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اور یہاں نعمت سے مراد حضور کی ذات ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جو لوگ دشمن تھے وہ آپس میں دوست بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے عربک کلچر کے اندر بچوں کو زندہ درگور کرنا، جنگیں ہوتی تھی، سارا کچھ۔ تو حضور کی آمد کا مقصد تھا جب آپ پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو جب جو جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لگایا گیا وہ وائٹ کلر کا تھا، تو وائٹ فلیگ سمبل آف پیس ہے۔ اللہ نے ٹیررسٹ کو یہ میسج دے دیا کہ میسنجر آف پیس آ گیا ہے، اس کے بعد کسی دہشت اور وحشت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجر اسود کی تنصیب آئی تو مختلف قبائل کے لوگ لڑ پڑے، تو حضور علیہ السلام نے ریکونسلیشن یہ کی کہ ہر ایک کی ریپریزنٹیشن ان کے لیڈر کو ایک چادر میں ان کو کہا کہ کونا پکڑ لیں، اور یہ کانفلکٹ مینجمنٹ تھی۔ تو آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہاں سے وحشت اور دہشت کا ہی نہیں خاتمہ تھا، اس استحصالی نظام کا خاتمہ تھا جو لوگوں کو جکڑ رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا۔ تو حضور نے انسانوں کو آزادی کا پیغام دیا، حکم دیا۔ تو آج امت مسلمہ کا یہ مقصد ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہے، ایک آپ کی ذات اور شخصیت سے ادب، تعظیم اور محبت اور عشق والا تعلق جو تعلق درود و سلام کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کی سنت و سیرت کے ساتھ تعلیمات اور عمل والا تعلق، کہ ہم محبت کے تقاضے ہیں کہ اس کو پریکٹس کر کے دکھائیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا کہ وہ نظام آئے جس میں عدل و انصاف آئے۔ یہی وجہ ہے کہ تکمیل پاکستان مومنٹ اسی نظام کی بات کرتی ہے۔ عباسی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ نظام مصطفیٰ سے کیا مراد ہے، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کب تک نافذ ہوگا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، نظام مصطفیٰ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت اور ڈیوائن ریویلیشن کا نفاذ، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ایک ڈیوائن ریویلیشن ہے، لیکن پریکٹس حضور نے کر کے دکھایا۔ آپ کی ایکسپلینیٹری اور لا میکنگ اتھارٹیز کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ نظام مصطفیٰ سے مراد صلح حدیبیہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد مواخات مدینہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد میثاق مدینہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد ہیومن رائٹس کا چارٹر خطبہ حجت الوداع ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد آپ کی ہجرت ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد آپ کا سوشو اکنامک آرڈر ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد
खिलाफा अला मिनहाज नबुआ है, जो सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने अपनी प्रैक्टिसेस नाफिज की और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर अमीर और गरीब का फ़र्क ना हो। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर कैसर और किसरा भी आके सैयदना उमर से पूछें कि आपका अमीरुल मोमिनीन किधर है, यानी पहचान ना हो। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसमें तोहफ़ा अगर मिले सैयदना उमर के बेटे को तो वो भी बैतुल माल में जमा हो जाए। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें खातून अव्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सैयदना उमर की बीवी एक शख्स की सिफारिश करती है, फरमाया तुम अपने काम से काम रखो, इन्वॉल्वमेंट स्टेट अफेयर्स में बीवियों की नहीं रखी जाती। तो हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसमें खलीफा वक्त का जुमे के खुतबे में एहतसाब होता है। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें सैयदना उमर जुमर के लिए लेट आते हैं, आपसे पूछा जाता है, फरमाया मेरे पास एक ही खमीज थी, मैं धोने में वक्त लग गया, कुर्बान जाएं। हम वो उमर किताबों से निकाल कर पाकिस्तान की गली चौराहों में उमर लॉज नाफिज करना चाहते हैं। यही वजह है तकमील पाकिस्तान मूवमेंट और चेयरमैन साद नज़ीर साहब, हम वो स्ट्रगल कर रहे हैं और एकेडमिक डिबेट के जरिए कौम को अवेकनिंग दे रहे हैं कि इस रबीउल अव्वल में खुदारा हुजूर अलैहिस्सलाम के नुक्ते अखुवत व मुआखात पर इकट्ठे हो जाएं, हुजूर की ज़ात को मरकज़ बना लें और इस मुल्क को एक खुशहाली और रवादारी की तरफ लेके जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और चूंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर ये भी बताइएगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज पाकिस्तान में किस तरह से मुमकिन है? जी, पाकिस्तान में मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लाखों लोग जो है वो जोग दर जोग आ रहे हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए, पर्सनल हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हम अभी फील्ड में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मरी में मुशान बेसत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मैं उसको तकमील के प्लेटफॉर्म से एड्रेस करने जा रहा हूँ। वहाँ पे भी हम एजेंडा दे रहे हैं और वहाँ पे उलमा की एक बड़ी तादाद, स्कॉलर्स की, मशाइख की, पॉलिटिकल वर्कर्स, यूथ वेट कर रही है कि हम शामिल होंगे, तकमील पाकिस्तान के शाना बशाना चलेंगे। तो पाकिस्तान में एक तो ये अवेकनिंग, हम बेदारी शऊर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, हमने स्ट्रक्चर मॉडल साद नज़ीर साहब ने पेश कर दिया है, वो बड़ा हमारे इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स ने मिलकर उसको तैयार किया, वो डेवोल्यूशन प्लान है। उसमें यह है कि एक अमीरुल मोमिनीन होगा, खलीफा होगा, उसके नीचे देखें लफ्ज़ों के गोरख धंधे बने जाएं। खिलाफा की अगर बात करें तो गुड गवर्नेंस का निज़ाम हम लाना चाहते हैं। अक़लियतों को हुकूक हासिल होंगे, एजुकेशन होगी, ख़वातीन को होंगे, इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, डाइवर्स मॉडल होगा, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारा दस्तूर मिसाक मदीना होगा, पूरी कौम सुन ले। हमारी मुआखात मॉडल, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें नो वन इज अबव द लॉ। हम स्टेटस को का खात्मा करके इंशाल्लाह इस मुल्क में वो निज़ाम लेके आए इंशाल्लाह। अब्बासी साहब, चूँकि आपने यूथ का जिक्र किया, तो नौजवान नस्ल को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलाने के लिए कौन से ऐसे अहम इक़दामात हैं जो हमें करने की बहुत ज़रूरत है? देखिए, सीरत मैं समझता हूँ कि यूथ को अगर आप वसल्लम से ताल्लुक़ मजबूत करना है तो उसका बेहतरीन तरीका दरूद व सलाम है। ठीक है, आप अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ इश्क व मोहब्बत पैदा करें। तो अगर हम देखें, शेख सादी ने कहा था, बलगल्ला बेकमालिही कशफत जा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि वाली। जो नात हुजूर की अरबिक में, चाहे वो सैयदना आयशा सिद्दीक़ा ने लिखी, लाना शमसुन वली लाफा के शमसुन व शमसुन ततलो बादल इशाई। यूथ अपनी रिकनेक्ट करे अपने हुजूर की ज़ात के साथ, आपके शमाइल का जिक्र करे, खसाइल का तज़किरा करे, सीरत का मुताला करे, कसरत दरूद व सलाम पढ़े। कसरत दरूद व सलाम से मैं नौजवानों को कहूँगा, ज़हन पे छटने वाले बादल उठ जाएंगे। जब आप दरूद पढ़ते हैं, आपकी हार्ड डिस्क मजबूत होती है, वो नूर, वो लाइट छलक के आंखों में आती है। फिर बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप देख सकते हैं, मेटाफिजिकल रियलिटीज को देख सकते हैं। तो अपने स्पिरिचुअल, अपनी नजर को मजबूत बनाएं। जब दरूद पढ़ेंगे तो आंखों का नूर बेहतर होगा, दिल का नूर होगा, चेहरे पे नूर आएगा, फिर लोग आपसे महफूज रहेंगे, मुआशरे में अमन और सुकून आएगा। तो अगर अपनी लाइफ में अमन और सुकून चाहते हैं तो रिकनेक्ट योर सेल्फ विद योर बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर मैक्सिमम रेसिटेशन ऑफ होली दरूद सलाम। दरूद सलाम कसरत से पढ़ के हुजूर से ताल्लुक मजबूत करें, सीरत का मुताला करें। आपके पास मोबाइल हैं, डिवाइसेज हैं, जितना अपने आप को रिकनेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग बेहतर होगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग बेहतर होगी तो अब आप हर किसी के लिए बायसे रहमत बनेंगे, मुआशरे के लिए बनेंगे। और आप कैरियर के अंदर जहां भी कामयाबी चाहते हैं, जो सफ़र 10 साल में तय करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ताल्लुक़ के बाद वो सफ़र चंद लम्हों में तय हो सकता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि चूंकि निज़ाम मुस्तफ़ा का आज हम जिक्र कर रहे हैं और तकमील पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उसकी अशात की जा रही है, जो तरीक़ाकार बताया गया है यकीनन वो बड़ा मुफस्सिल और स्कॉलर्स की जानिब से डिज़ाइन किया गया तरीक़ाकार। ये कहिएगा कि जहन साजी की जब हम बात करते हैं यूथ के हवाले से, तो तालीमी इदारों का बड़ा अहम किरदार है। तो हमारे करिकुलम का बाकायदा हिस्सा भी होना चाहिए, फिर निज़ाम मुस्तफ़ा को डिटेल में वहाँ पढ़ाया भी जाना चाहिए। जी, अनफॉर्चुनेटली वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसको समझा ही नहीं गया था, वो इदारों का हिस्सा कैसे बनता।
अब करिकुलम कमेटीज़ का हमारा ये आइडिया है कि हम यूनिवर्सिटीज़ की करिकुलम कमेटीज़ जो है, मैं चूँकि हिस्सा रहा हूँ सिंगल करिकुलम कमेटी का भी, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का भी, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी है, तो ऑन बोर्ड ले रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर सिलेबस के अंदर शामिल करें, और मेरा ख्याल है कि वो प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक होना चाहिए। अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 थीसिस के टॉपिक्स इस निज़ाम पे, और जो स्ट्रक्चर हमने दिया है, एक एमफिल का, 2 PhD के अप्रूव्ड हो गए टॉपिक्स, इस पर रिसर्च हो रही है, ताकि वो स्टूडेंट्स वो इस पर रिसर्च करके हमें अच्छे तरीके से इंसाइटफुल एनालिसिस भी दें, ताकि वो कौम के और उस यूथ के काम आ सके। और डॉक्टर साहब ये भी क्लियर कीजिएगा हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा का जिक्र होता है तो निज़ाम खिलाफत जो है वो सबसे रेलिवेंट समझा जाता है, या गालिबन वही निज़ाम है ये जिसका जिक्र किया जाता है। और तो जब निज़ाम खिलाफत का जिक्र होता है तो ज़हन में आती है एक अथॉरिटेरियन सिस्टम आता है। तो ये बताइएगा कि जिस निज़ाम खिलाफत का जिक्र तकमील पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है, उसमें जमहूरियत भी है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, 2 चीज़ें समझ लें। जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो उससे मुराद कुरान और सुन्नत का निज़ाम है। इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। अल्लाह की आयात और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत, इसी को खुलफाए राशिदीन ने एक्सपेंड किया है। खुलफा के दौर में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स हुई हैं, रिफॉर्म्स हुई हैं, स्ट्रक्चर हुजूर ने कड़ा करके दे दिया है, कॉन्सेप्ट आपने कुरान और सुन्नत की सूरत में दे दिया है। तो खिलाफा मॉडल की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद खिलाफा अला मिनहाजिन नबुआ है, यानी वो खिलाफत जो हुजूर अलैहिस्सलाम के प्रिंसिपल से आगे ट्रांसफ़र हुई, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं है, ख़त्म नबूवत है। तो उसके बाद चूंकि हुजूर ने फरमाया खलीफा होंगे, वो एक्सपेंड करेंगे। आपने अथॉरिटी की बात की, अथॉरिटी कुरान और सुन्नत होगी, कोई एक फ़र्क नहीं होगा। खिलाफत में अथॉरिटी बंदा नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में आप अथॉरिटी थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर कलाम नाज़िल किया, आपको अथॉरिटीज़ दी। आपके बाद अथॉरिटीज़ कुरान और सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात फाइनल अथॉरिटी है। हाँ, जहाँ पर कोई कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आ जाते हैं, वहाँ पे इस्लाम ने इज्तिहाद का दरवाज़ा खोला है। वहाँ पे स्कॉलरली जो एनालिसिस है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करेंगे, जिनको शरिया का, कुरान और सुन्नत का इल्म होगा। तो अथॉरिटी अल्लाह और उसके रसूल की है, बंदों की अथॉरिटी नहीं होगी। और डेवोल्यूशन प्लान होगा, इक्वालिटी और जस्टिस का, किसी को उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमर अब्बासी साहब थे, और बहुत खूबसूरत आज के दिन के हवाले से उन्होंने कहा कि किस तरह से हम अपनी यूथ को सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला सकते हैं।